السلام علیکم، میں ہوں شمائلہ نواز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ یہاں آپ کو خبر دیں کہ شیخو پورہ ضلع بھر میں کھاد نایاب، ضلعی افسران بلیک مارکیٹنگ روکنے میں ناکام، کھاد کی تلاش میں کسان مارے مارے پھرنے لگے۔ شیخو پورہ ضلع بھر میں کھاد نایاب ہو گئے، کسان مارے مارے پھرنے لگے۔ ذرائع کے مطابق کھاد کی گمشدگی کے ذمہ دار ڈپٹی کمشنر، محکمہ زراعت اور کھاد کے ڈیلرز بھی ہیں، جو بعض ضلعی افسران کی مبینہ ملی بھگت سے مافیا بن چکا ہے۔ یوریا کھاد کی سرکاری قیمت 3600 سے 3640 روپے فی بوری ہے، جبکہ اس وقت مارکیٹ میں 4800 اور 5000 اور 5500 کی بوری مل رہی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بلیک مارکیٹنگ کے ذمہ دار ضلعی افسران ہیں، جو کہ ڈیلرز مافیا سے ملے ہوئے ہیں اور ان میں اوپر کی کمائی ہو رہی ہے۔ حکومت نے محکمہ زراعت کے ساتھ ساتھ کھاد کی بلیک مارکیٹنگ روکنے کا ٹاسک ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو دیا، مگر یہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر بری طرح کھاد کی اسمگلنگ اور بلیک مارکیٹ روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ کسانوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور چیف سیکرٹری پنجاب فی الفور ڈپٹی کمشنر کی ناقص کارکردگی پر نوٹس لیں۔ ہم مارے مارے پھر رہے ہیں اور ہمارا تماشا محکمہ زراعت اور ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر خود دیکھ رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس نہ لیا تو کسان سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح خانیوال میں بھی انسانی حقوق کا عالمی دن کے موقع پر ڈسٹرکٹ پریس میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عامر نصیر سے۔ عامر نصیر، بتائیے گا۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح خانیوال میں بھی انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال میں ایک تقریبات کا انعقاد کیا گیا، تو جس کی مہمان خصوصی ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عذوبہ عظیم سنجادہ جی۔ میڈم بتائیے گا، انسانی حقوق کے حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی، آج کا دن بیسیکلی تو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی یادگاری کے حوالے سے ہے، جس میں آرٹیکل 3 اور آرٹیکل 5 جو ہے وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، جہاں پر لفظ کا استعمال کیا گیا ہے ایوری ون، اور ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو لائف، لبرٹی اینڈ سیکیورٹی۔ اسی طرح سوسائٹی میں ہر بندہ، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، اس کا رنگ، اس کا مذہب، اس سب سے اوپر آج کے دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور آج کے دن ہم سب نے یہاں عہد کیا ہے کہ ہم ٹالرنس کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ تعلیمات دیں گے۔ اسی طرح ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کا فوکس بھی ہے کہ اسکولوں میں بھی ٹالرنس کی تعلیمات کو بڑھایا جائے۔ اس پہ ضرور ہر روز ایک میسیج ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے کی برداشت بردباری کے ساتھ کر سکیں اور سوسائٹی کے ہر فرد کو، ہر ایلیمنٹ کو انکلوسیوٹی کے ساتھ لے کے چل سکے تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ شکریہ۔ جی بالکل، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہر مذہب ایک جیسا، تو بات کر لیتے ہیں چیئرمین عبداللطیف انور سے۔ بتائیے گا، آپ انسانی حقوق کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں، کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی حقوق کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہر مذاہب کا جو احترام کیا جائے اور معاشرے میں رہنے والے ہر شخص کی عزت اور احترام دیا جائے۔ اس قسم کے معاملات ہیں تشدد کے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور مذہب کی بنیاد پر بھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ چیئرمین عبداللطیف کا یہی کہنا تھا کہ انسانی ڈے منانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو میسیج جاتا ہے ہم سب ایک ہیں۔ رخ کریں گے سرگودا کا، جہاں پر حیدرآباد ٹاؤن کے قبرستان میں کتوں کا راج ہے۔ کتے قبروں میں گڑھے بنا کر قبروں کی بے حرمتی کرتے نظر آتے ہیں۔ قبرستان کی انتظامیہ سو رہی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری رحمان جنید سے۔ جی جنید۔ جی بالکل، اس وقت میں یونین کونسل نمبر 70 حیدرآباد ٹاؤن کے قبرستان میں موجود ہوں، جہاں پر قبرستان کی بہت خستہ حالی ہے، اور یہاں پر جانور ہیں جو وہ قبرستان میں جو قبریں ہیں ان کی بے حرمتی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس والے سے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو بے حرمتی کی جا رہی ہے انتظامیہ کیا کر رہی ہے۔ جی یہاں پر انتظامیہ کی جو ہے نا وہ لاپرواہی ہے۔ پالتو جانور جو ہیں وہ جہاں جگہ پہ دندناتے پھر رہے ہیں اور گڑھے بنا رکھے ہیں، قبروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ انتظامیہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے نا وہ ایکشن لینے کے لیے یا اس کو سنبھالنے کے لیے، دیکھ بھال کے لیے لاپرواہی جو ہے نا وہ برت رہی ہے۔ جی بالکل، دیکھ لیں کہ شہری کا بھی یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر۔
हज़ारों रुपए फंड ले लिए जाते हैं और मगर कब्रिस्तान के ऊपर जो नज़र वो नहीं डाली जा रही कि कब्रिस्तान में जो हमारे अजीज़ व क़ारब की कब्रें हैं उन पे जानवर बड़े बड़े गड्ढे बना रहे हैं और वो गड्ढे बनाकर हमारे जो प्यारों की कब्रों की बेहुरमती कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जो वज़ीर आला पंजाब हैं और कमिश्नर सरगोदा और डिप्टी कमिश्नर के इनसे ये अपील कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी के हमारे कब्रिस्तान की तरफ थोड़ी नज़र डाली जाए और जो ये बेहुरमती की जा रही है जानवरों की वजह से इसको जल्द से जल्द इंतजामिया के साथ मिलकर इसको ख़त्म करवाया जाए। जी, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सियालकोट के नवाही गांव ज़हूरा में कब्जा माफिया मुतहरिक हकीकी बेटे ने कब्जा ग्रुप से मिलकर बाप को तशद्दुद करके जायदाद से महरूम कर दिया। अहले खाना के इंसाफ के लिए आला हुकाम से अपील भी सामने आई। थाना कोटली सैयद अमीर के इलाका ज़हूरा में कब्जा ग्रुप मुतहरिक हो गया। हकीकी नाखलफ बेटे वकार ने कब्जा माफिया जावेद इकबाल से मिलकर अपने ही बाप अयूब को उसकी कीमती प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया। बूढ़े माँ बाप के सर से छत छीनने के लिए तशद्दुद करने लगा। कब्जा माफिया की जानिब से जाली कागजात तैयार करवा कर शहरियों को उनके कीमती जायदादों से महरूम करने के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, जो कि शहर इकबाल के कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अहले खाना ने DPO सियालकोट से ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए इंसाफ फराहम करने की अपील की है। थाना कोटली सैयद अमीर के इलाका ज़हूर में कब्जा ग्रुप मुतहर्रिक हो गया। हकीकी नाहलफ बेटे वकार ने कब्जा माफिया जावेद इकबाल से मिलकर अपने ही बाप अयूब को इसकी कीमती प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया। बूढ़े माँ बाप के सर से छत छीनने के लिए तशद्दुद करने लगा। मेरा बेटा वकार अहमद वल्द मैं अयूब मैनू देर करता मारदा ते इन्ना क मारिया कि अजे भी मेरा टुरिया नहीं जाता तो इतों बेदखल करना चाहता है। मामे के कहने ते मामे का नाम है जावेद, यदा मामा सौरा है, लिहाजा मैं उन्होंने मकान लिख दिता दोवां धीआं नूं, वड्डियां धीआं ते छोटा मुंडा। कब्जा माफिया की जानिब से जाली कागजात तैयार करवा कर शहरियों को इनकी कीमती जायदादों से महरूम करने के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ने लगे, जो कि शहर इकबाल के कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। मैं इनकी बेटी हूँ। तो मेरा जो भाई है उसने कुछ अर्सा कबल वालिद साहब को ज़ोर ज़बरदस्ती से इनको मार के इनके ऊपर तशद्दुद करके तो कुछ पेपर्स के ऊपर साइन करवा के जितनी इनकी ज़मीन थी सारी उसने अपने नाम करवा ली है। उसके बाद इनको इसी तरह बीमार हालत में छोड़ के वो सऊदी अरब चला गया। हम काफ़ी अरसे से उसको कहते रहे कि इस तरह ना करो, जो बहनों का हिस्सा है, जो बाकियों का है, अम्मी का हिस्सा बीच में, लेकिन उसने कहा आप लोगों से जो होता है कर लो, मैंने किसी को कुछ नहीं देना। अब ये जो घर है छोटा सा, ये मेरे वालिद साहब का ज़ाती मलकियत है इनकी, तो उसके पीछे भी पड़ा हुआ है। अहले खाना ने DPO सियालकोट से जुम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए इंसाफ फराहम करने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ AS शिराजी, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, सियालकोट। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जहानिया में गंदम की काश्त के बाद यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसानों को खाद कंट्रोल रेट पर दस्तयाब न होने पर किसान इत्तेहाद के रहनुमा निज़ामुल्लाह और वकला ने अदालत पेशी का बायकॉट किया और एहतजाज भी किया। जहानिया में गंदम की काश्त मुकम्मल होने के बाद पहले पानी के साथ यूरिया खाद की अशद ज़रूरत होती है, मगर किसानों को कहीं भी यूरिया खाद दस्तयाब नहीं हो रही। यूरिया खाद का कंट्रोल रेट 3,410 रुपये है, मगर किसानों को डीलर्स हजरात ब्लैक में 4,850 में फ़रोख्त कर रहे हैं। जहानिया के डीलर्स कंट्रोल रेट पर यूरिया खाद फराहम नहीं कर रहे। इस सूरत हाल के बाद किसान इत्तेहाद के रहनुमा निज़ामुल्लाह खान एडवोकेट ने वकला के साथ मिलकर इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। किसान रहनुमा का यह कहना था कि अगर गंदम की फसल के लिए यूरिया खाद कंट्रोल रेट पर दस्तयाब ना हुई तो गंदम का बहुत नुकसान होगा, औसत पैदावार कम हो सकती है। और खबर दें आपको, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में लेडी डॉक्टर्स की गफलत से मां के पेट में बच्चे की हलाकत का मामले पर पेशरफ्त सामने आई है। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में डॉक्टर्स गफलत के मरतकब करार पाए गए हैं और पैदाइश एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश का मरासला जारी कर दिया गया है।
CEO हेल्थ नारोवाल का कहना है कि बर वक्त ऑपरेशन न करने पर बच्चा पेट में ही दम तोड़ गया। कमेटी ने इंक्वायरी के बाद डॉक्टर्स को गफलत का मुर्तकिब करार देते हुए सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर लाहौर को पैदा एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई करने का मरासला जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 27 नवंबर को डॉक्टर्स की गफलत से शुमाइला नामी खातून का बच्चा पेट में दम तोड़ गया था। मुतासरा खानदान के अस्पताल में तोड़ फोड़ के बाद डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने वाक़े का नोटिस लेकर मामले की तहकीकात पर कमेटी तश्कील दी थी। मुतासरा खानदान तारिक का कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में गफलत के मुर्तकिब डॉक्टर्स और अमले का नाम जाहिर नहीं किया जा रहा। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से सुलह के लिए हम पर दबाव डाला जा रहा है। और अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएंगे। सांगला हिल में नौजवान टिकटॉक बनाते हुए ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 21 साल आकिब सुहेद वल्ब जाफिर के नाम से हुई, जो चक नंबर 93 ज़िला फैसलाबाद का रिहायशी था। टिकटॉक का शौकीन नौजवान की जान ले गया। रेलवे ट्रैक के करीब 3 दोस्त टिकटॉक बना रहे थे कि उनका एक साथी कराकोरम एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 21 साल आकिब सुहेब वल्ब जाफिर के नाम से हुई, जो चक नंबर 93 ज़िला फैसलाबाद का रिहायशी बताया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 ने लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और भावलनगर से आपको खबर दें, जहां पर हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पॉइंट पर सरेआम करप्शन का बाजार गर्म किया जा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे निकलवाने आई ख़वातीन से कार्ड लेकर रख लिए गए और फ़ी किस्त 500 रुपये चार्ज किए जाने लगे। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा जोया। गुलाम मुर्तज़ा, क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो पैसे दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से जो अपने ही नुमाइंदे गवर्नमेंट की तरफ से मुंतखब किया है वो गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। एक तो 500-500 हज़ार रुपए फी जो है औरत से वो ले रहे हैं, दूसरी तरफ इनके आईडी कार्ड लेके उन्होंने अपने पास 4-5 दिन से रख लिए हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ औरतें मौजूद है जिन्होंने एहतजाज किया है। मजीद हम इनसे जानते हैं। जी आप मुझे बताइएगा, आपने एहतजाज क्यों किया और आपके आईडी कार्ड किधर है? इनका 4-4 3-3 दिन हो गया। आईडी कार्ड ले लेते हैं, फिर पैसा लेने के लिए आते हैं, आईडी कार्ड जमा करके इसके नाम के 500-1000 रुपए फीस जमा करते हैं, ले लेते हैं उसी टाइम। कहते ये हमारे वो है, दुकान बंद करके चले जाते हैं ये। आज ये बिल्कुल ये जट्टू वाले में एक पॉइंट जो है कायम किया गया है। जो औरतें हैं इन्होंने एहतजाज किया हुआ है। दुकानदार ने इनके आईडी कार्ड जो है लेके अपनी दुकान के अंदर रखे हुए हैं। 5-5 6-6 दिन हो गए हैं और फी औरतों से 500 से 1000 रुपए जो ये चार्जेस ले रहे हैं, जो सरासर नजायज और गलत है। इन औरतों का यही कहना है कि हमारा हुकूमत वक्त और इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा है कि इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। जी चीफ ऑर्गेनाइज़र मरकज़ी जमीयत अहले हदीस अल्लामा काशिफ नवाज़ रंधावा के गोजरा आमद हुई है। मरकज़ी क़यादत का पैगाम ओहदेदारान तक पहुँचाया। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, चीफ ऑर्गेनाइजर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान चौधरी काशिफ नवाज रंधावा की गोजरा में चौधरी खालिद भुट्टा की रिहायशगाह पर खसूसी आमद हुई। मरकजी क़यादत अल्लामा साजिद मीर का पैगाम मरकजी जमीयत अहले हदीस के ओहदेदारान तक पहुँचाया, जिसमें आइंदा आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह हमायत और मुकम्मल सपोर्ट का कहा गया। और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के अमीर प्रोफेसर साहिब मीर साहब ने जो मुझे जिम्मेदारी चीफ ऑर्गेनाइज़र मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की दी है, उस सिलसिले में मैंने राब्ता मुहिम का एक आगाज़ किया है। उसी सिलसिला की कड़ी आज गोजरा पहुंचा हूं। गोजरा की जमात ने माशाल्लाह भरपूर एक तंजीमी इजलास करवाया है। एजेंडा सिर्फ ये है कि हम अपने वर्करों को मुतहर्रिक करके इस आने वाले इलेक्शन में जमात की तरफ से
भरपूर किरदार अदा करें। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी जमीयत अहले हदीस एक मुनज़्ज़म जमात है जो कि अपने सियासी कैरियर का भी ख्याल रखती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मुकम्मल अलहाक और सीट एडजस्टमेंट कर रही है। सहाफ़ियों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि PTI को भी इलेक्शन में शामिल करना ज़रूरी है, उनको फिलफौर हल किया जाए, जबकि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल हमायत का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर मुकम्मल यकीन रखती है और आइंदा आने वाले इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोजरा शहर से सरपरस्ती आला मौलाना अब्दुल कादिर उस्मान, अमीर हाफिज मोहम्मद असलम जट, मौलाना मोहम्मद शरीफ गुज्जर, मौलाना नियाज इलाही गोरसी, मोहम्मद सरफराज हसन ने खुसूसी शिरकत की और अपनी आला क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और रुख करेंगे बहावल नगर का, जहां पर यूरिया का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। किसान दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सिर्फ 2 बोरी खाद हासिल करने के लिए एक दूसरे के गिरबान पकड़ने पर मजबूर है। इंतजामिया खामोश तमाशाई है। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद वरिक। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ज़राअत को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और रीढ़ की हड्डी में अहम किरदार अदा करने वाला किसान जो है वो आज दर बदर खाद के असूल के लिए मारे फिर रहा है। मैं मौजूद हूँ बहावल नगर के हैदर स्टेडियम के इस पॉइंट पर, जहाँ पर खाद के असूल के लिए एक पॉइंट कायम किया गया। मेरे साथ एक ज़िम्मेदार मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। सर जी चौथा दे घर बार छड़ के विंदा गट्टा गु एक दिन दिन कोई नंद इंसाफ नहीं, फरमाइश वाले पहले लाग जांदे धक्के खा खा के फिर भी एक लभदा है ते किना नु एक भी नहीं लभदा पिया ते इना नु मुअत्तल कराया जावे कई शे खुदा दी नहीं पे देंदे। जिम्मेदारां दा खून चूसी जांदे ने। जी, जैसा कि आपने एक जिम्मेदार की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम पूरा दिन लाइनों में लग लग के थक जाते हैं और अक्सर औकात तो ऐसा होता है कि पॉइंट बंद करके चले जाते हैं कि खाद ख़त्म हो गई और ज़िम्मेदार बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से पुरज़ोर अपील है कि खुदारा इन खाद माफिया को लगाम डाली जाए और हमें खाद जो है आसानी से मिले ताकि हम गंदम की काश्त ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। जी तवानाई की हिदायत पर मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में अब तक गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने रीजन भर में अब तक 3600 से ज़ायद बिजली चोरों को पकड़ा है और उन्हें 27 करोड़ से ज़ायद जुर्माने किए गए हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं गुजरांवाला से मोहम्मद नदीम डार से। जी नदीम। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी गैपको ने रीजन भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी किए हुए हैं और इस सिलसिला में अब तक 3600 से ज़ायद जो बिजली चोर पकड़े गए हैं और उनसे 27 करोड़ 38 लाख जुर्माने उन्हें किए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि 7 सितंबर से जारी आदि नादहिंदगान के खिलाफ मुहिम में 29,000 से ज़ायद नादहिंदगान से 46 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं। इस वाले से चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको जाम यूब का कहना है कि बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ जो मुहिम है वो भरपूर तरीके से जारी है और इसमें किसी किस्म की किसी को कोई रायत नहीं दी जाएगी और इस हवाले से शहरी हैं वो भी अपना भरपूर तावर करें और बिजली चोरों के खिलाफ जो गैपको हेल्पलाइन है 118 पर इत्तला करें। जी और खबर दें आपको, पाकपतन में पुरअसरार तौर पर 3 माह कबल घर से लापता होने वाला रिटायर्ड मास्टर का वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। बीवी ने बहन के साथ मिलकर कत्ल करके लाश घर की छत पर दफन कर दी थी। रिपोर्ट कर रहे मोहम्मद अयूब चावला। थाना कबूला के इलाका में बच्चों के झगड़े पर बीवी ने बहन के साथ मिलकर रिटायर्ड मास्टर को कत्ल करके शोहर के लापता होने का ड्रामा रिचा दिया। डीपीओ पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत के मुताबिक पुलिस मुलजमा की निशानदही पर घर की छत पर दफन लाश को बरामद कर लिया। हुआ कि मास्टर साहब की साली उनके साथ रहती थी, वो तलाक याफ्ता थी और उनकी मिसेज के पास ही रहती थी। उनके बेटों को मास्टर साहब ने अडॉप्ट किया हुआ था लेकिन वो अपनी साली को अपने साथ रखने पर रजामंद नहीं थे, जिसपे उनके घर में झगड़े होते रहते थे। इससे तंग आकर
उनकी बीवी नाहिद ने अपनी बहन सिद्रा के साथ मिलके मास्टर साहब का मर्डर किया और मर्डर करने के बाद उनको घर की ऊपर वाली मंजिल में एक जगह पे गड्ढा खोद के वहां पे उनको दफन करके उसके ऊपर चबूतरा बना दिया। पुलिस ने पीएफएसए के साथ मिलके वहां से लाश बरामद करके तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए गए और इस पे मजीद तफ्तीश जारी है। मास्टर के 3 माह से लापता होने पर उसके दोस्त ने थाने इतला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बीवी और साली को गिरफ्तार किया तो उन्होंने इतराफ जुर्म कर लिया। कैमरा टीम के साथ अयूब चावला, मेट्रो 1 न्यूज, पाकपतन। इंसानी हुकूक के हवाले से प्रेस क्लब उमरकोट हॉल में ह्यूमन राइट्स फोरम ऑफ पाकिस्तान उमरकोट की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सहाफ़ी रसूल बख्श रहमदानी ने कहा कि फ़लस्तीनियों पर क़यामत से पहले क़यामत बर्पा करने वाले अमरीका और इसराइल अल्लाह के गज़ब से बच नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों की शहादत ने पूरी दुनिया को गमज़दा कर दिया है। जिस तरह गज़ा और दीगर फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की वहशियाना बमबारी से स्कूल, अस्पताल, मसाजिद, गिरजाघर, हज़ारों घर, ख़वातीन, बच्चे, सहाफ़ी, इंसानी हुकूक की तंजीमों के कारकुन समेत सबको बमबारी मिज़ाइलों से मारा जा रहा है। अमेरिका ने इसराइल को परमिशन सर्टिफिकेट दे दिया है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर दो। दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरह फ़लस्तीन में कत्लेआम हो रहा है। उधर मीरपुर खास वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन हेस्को मुलाजमीन का मुतालबात के हक में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मीरपुर खास प्रेस क्लब के सामने हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन हेस्को मुलाजमीन ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। एहतजाज से खिताब करते हुए यूसुफ सुमरो, शाहिद काजमी, सिकंदर मेहर और दीगर का ये कहना था कि हेस्को की जानिब से मुसलसल मुलाजमीन के साथ ज़्यादतियों का सिलसिला जारी है। सैकड़ों मुलाजमीन के जबरी ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और इदारे में स्टाफ की कमी को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिससे मुलाजमीन सख्त अज़ियत का शिकार हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी जबरी बदली किए गए मुलाजमीन वापस लाए जाएँ और मुलाजमीन के साथ होने वाली ज़्यादतियों का अज़ाला किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। आलमी सतह पर नौजवान इस्लामिक स्कॉलर्स की सबसे मकबूल तंजीम यूथ क्लब के ज़ेर एहतमाम मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद के मुकामी हॉल में भी कौन हूँ खुद को पहचानों के उन्वान से तरबियती और इस्लाही नशिस्त का एहतमाम किया गया। नशिस्त में शहर भर के हज़ारों ख़वातीनों, मर्द हजरात और नौजवानों ने CEO राजा ज़ियाउल हक, ताहा इब्न जलील, अबू साद, अली एहतशाम अल मारूफ, अली वजीउद्दीन, मोहम्मद अली और दीगर मारूफ स्कॉलर्स लेक्चरर्स के फ़िक्र अंगेज़ और इल्मी बयान सुनने के लिए शिरकत की। नशिस्त से खिताब में मेहमान मुकर्रीन ने कहा कि हमें सबसे कबल अल्लाह को पहचानना है, क्योंकि वही ज़ात है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मौत व हयात, रिस्क, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, ज़िल्लत सब कुछ है। हम इसको फ़ानी दुनिया में तलाश कर रहे हैं, जो कि सरासर संगीन गलती है। उन्होंने कहा कि तब्दीली दूर नहीं, आज सैकड़ों नौजवानों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि इस्लाम लोगों के दिलों में बसा हुआ है और वो इसको अपनाना चाहते हैं, बस रहनुमाई की ज़रूरत है। स्पीकर्स ने जोर दिया कि अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हों और हलाल हराम का फ़र्क बरकरार रखें, ताकि दुनिया भी संवरे और आखिरत भी। नशिस्त में मोहम्मद इरफान ने इसे सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तंजीम के ज़रिए तमाम आखिरी मेगा इवेंट कराची में मुनक़्क़िद होगा। मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर दें कि सूरज की तपती धूप हो या यकबस्ता हवाएं से बचने के लिए शहरी अपने घरों में सरकंडों से तैयार होने वाली चिकें लगाते हैं। हैदराबाद में जफाकश लोग इंतहाई मेहनत के साथ इन्हें तैयार करते हैं, मगर इन मेहनत कशों को मुनासिब उजरत न मिलने के बाद सख्त परेशान रहते हैं। रिपोर्ट करें हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी।
हैदराबाद की शाहराह मीरा मोहम्मद शाह पर सरकंडों से मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती हैं, जिसमें चिक्कों को नुमाया खुसूसियत हासिल है। गर्म हवाएं हों या मौसम सरमा, शहरी इनसे बचने के लिए सरकंडों से तैयार होने वाली चिक्के अपने घरों में लगाते हैं, जिससे घरों में भी खूबसूरती पैदा होती है। सर्दी के मौसम में इस वजह से जो है ना चटाइयों की खरीदारी करने आए हम लोग, और इससे बचत हो जाती है सर्दी के अंदर। बरांडे में लगाते हैं हम इसको। मेहनत कश सरकंडों को डोरी से जोड़कर बड़ी मेहनत और महारत के साथ चिक्के तैयार करते हैं। सरकंडों के जरिए चिक्कों के अलावा मुड्डे, चटाइयाँ और दीगर अशिया भी तैयार की जाती हैं। मटीरियल बहुत महंगा हो गया है और ग्राहक को ये समझाना बहुत मुश्किल है। ग्राहक समझता ही नहीं है बात को। 5 स्टार होटल में जाके खाना खाते हैं, वहाँ 1000 रुपये टिप देते हैं, लेकिन मेहनत जो हम करते हैं उसके पैसे उनसे नहीं दिए जाते। डोरी होती है, कपड़ा होता है, नेवाड़ होती है, सिलाई होती है, और मेन चीज़ इसमें जो मजदूर होते हैं वो लगते हैं। जिस पे पीछे पैराशूट होता है, जिसकी वजह से सर्दी भी रुकती है और धूप भी रुकती है। वैसे इनकी मजदूरी देखा जाए तो अभी जो मैं बैठे बैठे देख रहा था इधर के हालात वो बहुत कम है, और दूसरी इनको देना चाहिए, इनका जो हक है, क्योंकि मैं बैठे बैठे खुद देख रहा हूँ जितने ये मांग रहे हैं ना, कम मांग रहे हैं ये लोग पैसे। चिक्के बनाने वाले जफाकश अफराद कहते हैं कि मुनासिब कीमत न मिलने और शर्बा महंगाई के बाइस इनका कारोबार बेहद मुतासिर हुआ है। उन्होंने मुतल्लका जो काम है उनसे फौरी तौर पर अपील की है कि इनके जो मटेरियल है जिसमें महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है उसमें कमी वाक़ हो, ताकि ये अपने बच्चों की कफालत कर सके। कैमरामैन आसिफ बंदानी के हमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। यहाँ आपको खबर दें कि सेंट्रल जेल खैरपुर में सिंधी सकाफती मेले का इनेकाद किया गया। मेले की शुरुआत कौमी परचम लहरा कर की गई। कैदियों ने भंगड़े डाले, महफिल मौसीकी भी मुनक्किद हुई। जेल सुप्रिटेंडेंट नायब अली भांजुन के अलावा सैकड़ों अफराद शरीक हुए। सेंट्रल जेल खैरपुर में सिंधी सकाफती मेला मुनक्किद हुआ। जेल सुप्रिटेंडेंट नायब अली, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अब्दुल रऊफ और पीपल्स पार्टी रहनुमा नज़ीर अहमद फलपोटो तकरीब के मेहमानान खुसूसी थे। तकरीब के दौरान कैदियों ने भंगड़े डाले, खुशी में झूमे, जबकि मुकामी लोग फनकारों ने सिंधी सकाफत के गीत गाए। जेल सुप्रिटेंडेंट नायब अली ने कहा कि आज हम सब सिंधी सकाफत को परवान चढ़ाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। सिंधी सकाफत की तकरीब का दिन हमारे लिए बड़ी खुशी और बड़ी ईद का दिन है। इस खुशी के मौके पर मैं खैरपुर जेल के सज़ा याफ्ता कैदियों की 2 माह की सज़ा माफ़ करने का ऐलान करता हूँ, जबकि खोलियों में बंद कैदियों को भी खोलियों से निकाल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सिंधी तहजीब और सकाफत का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में होता है। सिंधी तहजीब की तकरीब के जेल के अंदर मुनक़िद करने पर मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा कि जेल के कैदी मुझे अपनी औलाद के बराबर हैं। जेल का माहौल काफ़ी बेहतर और पुरअमन है। कैदियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रुख करेंगे चुनिया अकंगरपुर का, जहां की पुलिस का अनोखा कारनामा, बेगुनाह शख्स पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मेट्रो 1 न्यूज़ को हासिल होने वाली फुटेज में एसआई अशरफ रिश्वत मांगते देखा जा सकता है। चुनिया अकंगरपुर एसआई अशरफ का अनोखा कारनामा, बेगुनाह गरीब शहरी को मनगढ़ंत झूठे मुकदमे में फंसा दिया। शक की बिना पर पकड़ा, फिर एसआई अशरफ ने छोड़ने के लिए रिश्वत ली और बाद ऐसा झूठा मुकदमा दर्ज कर किया। अब मजीद रिश्वत मांग रहा है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एसआई अशरफ परवेज़ नामी शहरी के वर्षा से रिश्वत मांग रहा है और शहादतें ना देने की यकीन दहानी करवा रहा है। वर्षा ने डीपीओ कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। भावलपुर में यूनेस्को की मामनत से जदीद सहूलियात से आरास्ता स्टेट ऑफ द आर्ट लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। यूनेस्को की जानिब से मुनक़्क़िद इफ्तिताही तकरीब में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न डॉक्टर एहतशाम अनवर, यूनेस्को पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर मिस्टर यूसुफ समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। इख्तितामी तकरीब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल केनाल कॉलोनी में मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब ने कहा कि ट्रांसजेंडर स्कूलों के तलबा को जदीद सहूलियात से आरास्ता स्टेट ऑफ द आर्ट लैब में कंप्यूटर, कुकिंग, ब्यूटिशियन, टेलरिंग और प्रोडक्शन के शोबों में फ़नी तरबियत दी जाएगी। तकरीब के शुरुआत से इज़हार ख्याल करते हुए कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न डॉक्टर एहतशाम अनवर ने कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट लैब के क़याम से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को तालीम के साथ साथ एजुकेशन स्किल्स सीखने में मदद मिलेगी। यूनेस्को पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर मिस्टर यूसुफ ने अपने खिताब में कहा कि जनूबी पंजाब में तालीम की बुनियादी और लाजमी हद तक आवाम की आसान रसाई के हवाले से यूनेस्को महकमा स्कूल एजुकेशन के साथ अपना ताउन जारी रखेगा।
केवड़ पक्का महकमा ज़राअत के अफसरान और तहसील इंतज़ामिया की नाअहली के बायस DAPO और यूरिया खाद का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इंतज़ामिया और महकमा ज़राअत के अफसरान की आंखों के सामने खाद ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त हो रही है। मज़ीद जानते हैं केवड़ पक्का से हसनैन खान रिंद से। हसनैन, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल कहरोड़ पका और उसके मजाफात में जो है यूरिया खाद और DAP खाद का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। किसान जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं काश्तकार के पास मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए काश्तकार मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। जी भाईजान, बताइएगा, खाद का बहरान है तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ हुकूमत को इल्तजाई कर सकते हैं। भाई ये गंदम अल्लाह दे बारां दे थई पई है। उत्थे मैंने लाइना च लगना पौंदा जिथे हुण मतलब अपना 4000 है ना बोरी का रेट 4700 रुपए नाल ब्लैक च ओ विच पारी बाहे बाहे दवाला ने जेड़े वड्डे वड्डे ठीठाणे ना गापड़ गाप सारा कुछ निजाम नरम धरम थिया पे वो अपने स्टोर दा कीती बैठन वड्डे वड्डे लोकां को दे देन जिवें असां हुण 5 किलो वाले 4 किलो वाले बाहे बाहे दवाला ने ना साकू यूरिया मिलदी है ना DAP मिलदी है। कोई शक नहीं। मक्की दा रेट दे गिनो थोड़े सामने असां लाखां रुपया दे खर्चे कीते। कम से कम 1,20,000 30,000 एकड़ दा खर्चा दे मक्की काश्त कराण दे। हुण उतने दी भी आवे असां दसो उंदे उत्ते ठेका देऊं उंदा खर्चा कढूं क्या करूं। हुकूमत कोई अपील कीती वेंदी यार मेहरबानी करो कोई काश्तकारां दे बारे जेड़ा ना सोचो। अगर किसान बेहाल थी गया ये मुल्क कहना चलसी। अगर किसान खुशहाल होसी ये मुल्क खुशहाल होसी। जी, जैसा कि आपने काश्तकार की बात सुनी, परेशान दिखाई दे रहा है। इन्होंने हुकूमत वक्त के ऐवानों से मुतालबा किया है कि खुदारा हम किसानों के हाल पर रहम किया जाए और जो ब्लैक में खाद फरोख्त की जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए और खाद की तरसील जो है वो यकीनी बनाई जाए। जी, बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नारोवाल के मुख्तलिफ ग्रोहों की इंतखाबी सरगर्मियाँ अपने नुक्ता अरूज पर पहुँच चुकी हैं। इस हवाले से DPO नारोवाल का पनु ग्रुप भी किसी से पीछे नहीं है। पनु ग्रुप की तरफ से जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद इमरान उमैस एडवोकेट हाई कोर्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे ग्रुप ने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे जनरल सेक्रेटरी के ओहदे का उम्मीदवार नामजद किया। हम कचहरी में बुकला बरादरी का साथ देते रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। हम यंग बुकला के लिए बहुत मेहनत करेंगे, उनके लिए चैम्बर्स का बंदोबस्त करेंगे। अकाउंट ऑफिस नारोवाल के पीछे 5 कनाल रकबा DBA के मौजूदा अहदेदारान ने कोशिश करके हासिल किया और इसे प्रोसेस करवा रहे हैं। हम इलेक्शन जीत कर वो प्रोसेस मुकम्मल करवाएंगे और वो जगह यंग बुकला को अलॉट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि नए बुकला के अखराजात कम से कम हों। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि किसी बिल्डर या इन्वेस्टर के ज़रिए बुकला की इमदाद की जाए। मेरा मंशूर है कि हर काले कोट वाले का हर मसला हल किया जाए। हम ये काम माजी में भी करते रहे हैं। हम एक लीगल टीम बनाएंगे जो गरीब साइलिन के केस फ्री लड़ेगी। और खबर दें आपको कि इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और लापरवाही की वजह से ज़िला बिहाड़ी के मुतअद्दिद सरकारी स्कूल अरसे दराज से बंद पड़े हैं, जिसके बायस यहाँ से बच्चों और बच्चियों को दर्जनों किलोमीटर का सफ़र करके दीगर शहरों के स्कूल में जाना पड़ता है। मज़ीद जान लेते हैं लुड्डन में मौजूद हाकिम अली बोदला से। जी हाकिम अली। जी, इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और लापरवाही की वजह से ज़िला बिहाड़ी के मुतअद्दिद सरकारी स्कूल अरसा दराज से बंद पड़े हैं। और इन स्कूल्स की अगर बात की जाए 279 EB का गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, बस्ती अता मोहम्मद का प्राइमरी स्कूल और बस्ती गाजी खनाना का गर्ल्स प्राइमरी स्कूल समेत दीगर कई स्कूल वीरान पड़े हैं। मजीद इस हवाले से मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है। मजीद हम इनसे जानते हैं कि इसके हवाले से इनका क्या कहना है। जी हाँ जी, 3 साल हो गए इमारत बनाई गई है और बिजली का इंतज़ाम भी नहीं है और पानी का भी नहीं है और बच्चियाँ वगैरह हैं बाहर तो नहीं जा सकते और पानी का इंतज़ाम भी होना चाहिए और बिजली का भी होना चाहिए, बस यही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, यहाँ पर बिल्कुल किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं है, लिहाजा बच्चियों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। इनकी बिहारी DC से अपील है कि यहाँ पर जिस चीज़ की कमी है उसको फिल फौर पूरा किया जाए। जी, फैसलाबाद में मोटरवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मशकूक गाड़ी से 420 किलोग्राम चरस और 117 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, जबकि ड्राइवर रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया।
मुफ्ती कारी मोहम्मद तैयब एडवोकेट के साहबजादगान की दावत वलीमा में सहाफ़ियों, वकला, उलमा, सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं डेरा गाजी खान से हमारे नुमाइंदे शेख रमज़ान नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। मुफ्ती कारी मोहम्मद तैयब एडवोकेट के साहिबजादगान की तकरीब दावत वलीमा मकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें सहाफ़ियों शेख रमज़ान नदीम, शाहिद हुसैन राजपूत, मोहम्मद सलीम चौहान, अमजद खान, ताहिर अजीज़ कुरैशी, असद दाऊदी, शेख मोहम्मद याकूब समेत शहरियों की कशीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर MQM पंजाब के सीनियर नायब सदर जनाब शेख इज़हारुल्लाह कुरैशी, मेंबर पंजाब बार कौंसल मलिक इकबाल साकिब एडवोकेट, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अजमत इस्लाम गलजई, शेख मोहम्मद सलीम एडवोकेट समेत शहरियों की कशीर तादाद ने शिरकत की और कारी मोहम्मद तैयब एडवोकेट को इस खुशी के मौका पर मुबारकबाद पेश की। आखिर में कारी मोहम्मद तैयब एडवोकेट ने आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट शेख रमज़ान नदीम, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। कबीरवाला में HRLC के ज़ेरे तमाम निजी कॉलेज में माँ मेला सजाया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डॉक्टर अकरम खान, डॉक्टर शनीज़ा और अवैस नाम थे। तकरीब में इदारों के सरबराहान समेत कम्युनिटी मेंबर्स ने भी शिरकत की। मेले में माँ और बच्चे की सेहत पर आगाही दी गई। माँ मेला तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद हदिया नात पेश की गई, तकारीर की गई। मेले में खूबसूरत स्टॉल्स लगाए गए, जिसने माँ मेले में शरीक लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि इस तरह के इवेंट मुस्तकिल बुनियादों पर जारी होने चाहिए, ताकि आवाम भरपूर आगाही मिलने के साथ साथ तफरीह के मौके भी मैसर हों। मज़ीद ख़वातीन का कहना था कि इस माह मेले से ख़वातीन को मालूमात मिली कि किस तरह माँ ने अपने बच्चे की परवरिश करनी है और बच्चे से पहले माँ का किस तरह ख्याल रखना है। तकरीब में मेहमान खुसूसी को शील्ड पेश की गई। माह मेले में मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पसरूर में शदीद धुंध के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुकी है। धुंध के बायस हद निगाह कम होने से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इस पर मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे एजाज अहमद खोकर से। जी एजाज अहमद। जी बिल्कुल, पसरूर शहर समेत कोटली, बावा, किला कालावाला, बडियाना और गिरदोनवा में गुज़श्ता शब से छाने वाली धुंध की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है, जिसके बायस हद निगाह चंद मीटर तक महदूद हो चुकी है। शदीद धुंध के बायस जहां पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, वहीं पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है, जबकि शदीद धुंध के बायस कारोबारी मामूलात जिंदगी भी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। दूसरी तरफ किसी भी नाखुशगवार वाक़या के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 की जानब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पसरूर सर्कल पुलिस की जानब से सड़कों पर पेट्रोलिंग का सिलसिला भी बढ़ा दिया गया है, जबकि ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी की जानब से धुंध के बायस आगाही मुहिम के जरिए ड्राइवर को फोग लाइट का इस्तेमाल करते हुए दीगर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत भी दी जा रही हैं। जी DSP सर्कल पतौकी इरफान अकबर भट्ट की हिदायत पर SHO थाना सराय मुगल गुलाम साबिर छीना की पुलिस पार्टी के हमरा नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ 2 राइफल और गोलियां बरामद की, जबकि 2 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया। पतौकी SHO थाना सराय मुगल गुलाम साबिर छीना ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 राइफल, 44 बोर मुतअद्दिद गोलियां बरामद कर ली। पुलिस ने 2 मुलजमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। मुलजमान की शनाख्त अली हसैन और शबीर अहमद के नामों से हुई। SHO थाना सराय मुगल गुलाम साबिर छीना ने मरकजी प्रेस क्लब सराय आलम मुगल के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और थाना सराय मुगल की हदूद में नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन का इजलास सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में चेयरमैन सरवत कमर की तरफ से हुआ, जिसमें एसोसिएशन के सालाना कारकर्दगी के हवाले से आगाह किया गया। आज हम सब यहाँ पे ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से राइजिंग टुगेदर और एम्पावरिंग वुमेन के लिए हमने अपने प्लेटफॉर्म से सब लेडीज़ को इनवाइट किए, जहाँ पे डिफरेंट
शोबा ज़िंदगी से कामयाब अपनी बिजनेस कर रही है सियालकोट से लेडीज़, उनके लिए हम अपा उनको लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। लेडीज़ को हमने इनवाइट किया और बहुत माशाल्लाह यहाँ पे हमारा आज का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा है और उसके लिए हम सब लेडीज़ को हेल्प आउट करते हैं, उनके लिए जो आने वाले इश्यूज़ हैं उनके लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए, एम्पावरिंग वुमेन के लिए हम सब इकट्ठे हैं, उनके हेल्प करने के लिए अप्पा यहाँ पे उनके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करता है और हम इसके लिए हमारे डिफरेंट जो शोबे हैं काम करते हैं और वी आर वेरी हैप्पी। सियालकोट में इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट है और आज हमें मालूम हुआ कि इस प्लेटफॉर्म पे आके कि यहाँ पे ख़वातीन किस कदर कामयाब है। यहाँ पे चैम्बर ऑफ बिजनेस बहुत काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे डिफरेंट बिजनेस से सारी लेडीज़ ने इस प्लेटफॉर्म पे आके आज हमें ज्वाइन किया और हम उम्मीद करते हैं कि सब मिल के यहाँ 48% ख़वातीन जो पाकिस्तान की हैं उनमें हमारा भी एक बहुत अच्छा रोल और हम सब मिल के पाकिस्तान को आगे कामयाब करने के लिए हम इसको मिल के काम। मोड़ अमनाबाद मोहल्ला अब्बास नगर का सीवरेज का देरीना मसला हल ना हो सका। सीवरेज के गंदे पानी से गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे। इसी पर इलाका मकीनों ने एहतजाज शुरू कर दिया। मजीद जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद मोहम्मद नवीद से। जी नवीद। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं मोड़ इमनाबाद के मोहल्ला अब्बास नगर में, जहां 1.5 से 2 साल से खड़ा पानी लोगों को अजियत का बायस बन रहा है। यहां पर डेंगू, मलेरिया जैसी आम खतरनाक बीमारियां हो गई हैं। लोगों का यही कहना है कि हमारे इस मसले को हल किया जाए। इसी वाले से हमारे साथ कुछ हजरात मोहल्लेदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बाबा जी, क्या आपको मसले मसाइल इनसे? सुबह नमाज पढ़न आने हैं, नमाज साढ़े कपड़े साफ नहीं रहंदे। सानू बड़ा मसला है कि असी एक वडेरा बंदा ते मस्जिद च आना बहुत मुश्किल ओहदे वास्ते। और दूसरे नंबर ते कि कब्रस्तान का भी रस्ता ये है, स्कूल 2 ने, जनाज़गा सारा कुछ इसे रोड ते साडा। सानू हर टाइम परेशानी है कि असी इन्ने इहदे विच 4 साल तो इह बीमारी दे विच मुबतला हो के साडी कोई सुनदा ही कोई नहीं। बराए मेहरबानी कि साडे ते कोई रहनुमाई कीती जावे। असी माड़े लोग नहीं, एडे साडे कोल वसैल है ना, कोई साडी सुनदा ही है। बथेरे असी उन्हां डीसीओ दे जिथे भी गए बहरहाल साडी कोई गलबात नहीं सुनदा। बहरहाल तुहाडी मेहरबानी कि तुसीं साडा पैगाम अगे हुकूमत तक पहुंचाओ तो मेहरबानी है जी, सानू बीमारी तो बाहर कढो। जी, आपने इलाका मकीनों की बात सुनी। इनका यही कहना है कि हम डीसी गुजरावाला, एसी गुजरावाला को मुतअद्दिद बार अपने दरख्वास्त भी भेजी, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ से 200 मीटर के फासले पर मोटरवे का लिंक भी गुजरा है, वो तो बहुत ऊंची बन गई, मगर ये जो इलाका मकीन है साथ बिल्कुल साथ रहते हैं वो डूब गए। उनका ये मसला हल करके उनकी दादरसी की जाए। जी, शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।